So great to be on this platform, virtually connecting with you all. और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज हमने जो पूरा 7 दिन का हमारा वर्चुअल सेशन चल रहे हैं ऑन द स्पेशल ओकेजन फॉर द नेशनल न्यूट्रिशन वीक। और हम लोगों ने पूरे वीक बहुत अच्छी चीजों के बारे में सीखा जाना। एंड आज का सेशन अब हम आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे आई थिंक जो यूजुअली सबको मालूम है, एवरीबडी वांट्स टू नो good about how they can balance their work life, their health, but somehow we always be in a situation where there is a gap and we don't know what to do because as we know we are in a hectic and the बहुत ही भीड़ भाड़ का क्योटिक लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग घिरे हुए हैं। सो आज के सेशन का जैसे कि इंट्रोडक्शन दिया नितिन सर ने कि आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट योर वर्क वेल एंड वे लेस। तो आज के सेशन शुरू करने से पहले लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन विद यू। प्लीज नितिन सर एक बार मुझे आप हेड्स अप दीजिएगा इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। Sure, Simrita. Is my screen it is visible now. Okay, thank you so much. Thank you so much. So let me start with today's session, work well, way less. And मैं आपको ये बता दूं, when we say कि way less, it doesn't mean कि we only have to way less. I mean मतलब कि weight को lose करना ही is the only agenda which we are carrying when we are in a situation where we have to balance our work life. So way less means way right, I would say, rather than way less. And everybody is working in a modern times, in a modern workplaces, in their offices, in some are in the corporate offices, in their IT sectors. Entrepreneurship are going to in today's modern world, और desk job है, sedentary lifestyle है। इस चक्कर में बहुत ज्यादा हेल्थ क्राइसिस भी सबको फेस करने पड़ रहे हैं। एंड इफ वी सी दैट everybody is juggling in their long working hours, managing their deadlines and multiple responsibility कि ये भी करना है, deadline भी देनी है, ये project पे भी काम करना है, and there are so much a lot going on their workplaces. We tend to not to think much about our health, and we sometimes give less importance to which actually means a lot to us, which is our health. Because if somebody is not healthy, if you are not healthy, if you don't carry the energy, अगर आपके पास उतनी ताकत नहीं है कि आप रोज सुबह उठ के काम पे जाएं, या आप if you are even not working from office, you are working from home and आप लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रहे हैं, if your body is not having that much energy, so प्लीज ट्रस्ट मी, वो बिल्कुल आपका एक टाइम के बाद वर्थलेस हो जाएगा, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी और नॉट एबल टू पुट द राइट intention to your work, concentration, your body started losing the focus, आपका कहीं ना कहीं इधर उधर imbalance होगा. So that's how in today's session we'll be learning a lot about that. So during this time, like food choices is the something which I think people are struggle the most to choose what to eat, what not to eat. And because I said, food very easy, and which is like a quick snacks, which is like a packet snacks, which is like processed food, something जो बहुत ही handy आ रहा है. We know कि we can grab a bite of it, and वो सबसे ज़्यादा if we see in the studies in the today's time, if we see there are studies that 20 to 25% more calories are from the snacks which being consumed by the office workers. So office workers 20 से 25% ज्यादा कैलोरी सिर्फ स्नैक्स से ले रहे हैं, जो उनकी डेली की रिक्वायरमेंट है. वो तो मीट कर रहे नहीं कर रहे, बट वो बुरी जो कैलोरीज उनको नहीं चाहिए उनके बॉडी को, वो जरूर ऐड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस लाइफस्टाइल. सो हमें लगता है कि आई जस्ट ग्रैब अ बाइट, मैंने तो एक छोटा सा पीस लिया है स्वीट का, और आई जस्ट हैव अ फ्यू बाइट्स ऑफ चिप्स और ये फ्राइज लिया है. एक दो फ्राइज से क्या होता है, दिस इज समथिंग विच ऑलवेज गोज इन आवर हेड कि एक दो फ्राइज से क्या हो जाएगा. बट इफ व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, व्हेन यू ओनली munching on these kind of snacks, when you're only picking up कि चिप्स ही खाने हैं, बिस्किट्स खाने हैं या फ्राइज लेने हैं, so then that small bite become
problem which can imbalance your health, which can imbalance your diet and your calories, and it affects on your health. So workplace nutrition and health की अगर हम बात करें कि आज के जो सेशन में भी हम डिटेल में जानेंगे, इससे पहले how it all affected or connected with each other, your workplace nutrition and health nutrition. Active work doesn't impact just your body weight. It plays a very big role when it comes to your focus. As I said, it's your focus, your energy, even your stability and throughout the day. Because most of the time, everyone is spending their time either they're in the office, on their laptops or working environment. ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सबका वहीं जाना है और ऐसा नहीं है. Everybody in today's time, be it anyone, male or female, everybody is having that very career-driven personality. Everybody wants to achieve it. Everybody wants to build an amazing career for themselves. So it's an inevitable thing कि हमें career या हमें काम करना नहीं छोड़ना, but हमें उसको actually ये देखना है कि how I can perceive my aim or I can achieve my goals, but carrying that right healthy body. So if that body or health is not with me, I think after a while that will become more struggle for me to achieve that goal or my aim. So that's why when we say you have to balance by work, whatever आप जो भी फील्ड में आप आईटी में आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, इवन इफ आई टॉक अबाउट टीचर्स, आप उस यूनिवर्सिटीज में स्कूल में कहीं भी आप काम कर रहे हैं, आप काम कीजिए, बट आपको अपनी हेल्थ को इक्वली इम्पोर्टेंस देनी है, बिकॉज इट विल इम्पैक्ट द मेजर टाइम ऑफ योर डे जहां आप स्पेंड करें, विच इज योर वर्क प्लेस. सो वो आपका हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी चीज कुछ भी आए कि आपकी हेल्थ पर असर करे. तो लॉन्ग टर्म बैलेंस ईटिंग हैबिट एट द वर्क प्लेस सपोर्ट बेटर heart health, stronger immunity and improved productivity. Because see, aging is something which is again nobody can stop. So your organ is also aged with your age. तो आपकी जो भी health habits, आपकी जो भी eating habits होगी, वो आपके organs को भी affect करेंगी. So if you balance that, तो आपके organs, specifically if you talk about heart health, वो सही रहेगा. Immunity, because again I don't want to skip my office with one reason again and again, which is my health. Like I'm falling sick, बार बार मुझे कोल्ड एंड कफ हो रहा है या मैं बीमार पड़ रही हूँ, तो अपनी इम्यूनिटी को भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट देना है और उसको मेंटेन करना है. अगेन we talk about ऊपर के जो पॉइंट्स हैं कि अगर हम हेल्थ अच्छी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप आपकी अच्छी होगी. The good news is the evidence based simple strategy we can make nutrition work for us even in a busy professional routine, and these simple evidence based strategies हम इस सेशन में आज सीखेंगे. एंड आई रियली वांट कि बाय द एंड ऑफ सेशन आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखें अपने साथ, क्योंकि कल नया वीक स्टार्ट हो रहा है, मंडे स्टार्ट हो रहा है, तो आप कल से ही उन पॉइंट्स को अपने साथ अपने रूटीन में लेकर आए, लाइफस्टाइल में फॉलो करें एंड यू विल सी द बेटर रिजल्ट. व्हाई वर्क प्लेस न्यूट्रिशन मैटर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या है हमारी सिडेंट्री जॉब से. सिडेंट्री जॉब से मेरा मतलब है इधर आप एक जगह बैठ के काम करें, यू आर ऑन अ लाइक अ डेस्क वर्किंग, की टेबल चेयर एंड योर लैपटॉप इज देयर, इधर नॉट मच मूवमेंट, आप ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही, तो सारी चीजें आपकी सिडेंट्री जॉब्स में आती हैं. आप व्हाट इट कैन लीड टू लोअर कैलोरी बर्न, आपका जो भी आप कैलोरी कंजप्शन है वो आपकी कैलोरी को यूटिलाइज भी करना पड़ेगा बॉडी को. दैट्स व्हाट वी से ना, योर कैलोरी इनटेक जो होता है और कैलोरी बर्न, अगर कैलोरी इनटेक से ज्यादा कैलोरी बर्न होगा तो आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा. एंड इफ यू बैलेंस बोथ तो आप वेट मैनेज करने में हेल्प करेगा. बट अगर यही आपका कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा होगा और कैलोरी बर्न कम होगा, विच विल लीड टू द weight gain. So sedentary jobs, less movement, less utilization of your calorie. तो फैट क्या है, या आपकी बॉडी में जो कैलोरीज हैं वो एक ही जगह रहेंगी, वो आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, आपके ऑर्गन्स के आसपास रह जाएंगी. सेकेंड चीज क्या हो रही है, अगर हम ढंग से अपना खाना नहीं खा रहे या अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो फ्रीक्वेंट स्ट्रेस
प्लस इरेगुलर मील्स, इससे आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं. सो बिकॉज हमने अब हम वही बात करें कि वर्क लाइफ बैलेंस करना है, वर्क स्पेस की बात कर रहे हैं, वर्किंग ऑन समथिंग, आप लोग किसी चीज पे काम कर रहे हैं, बहुत हेक्टिक है या आपको डेडलाइंस मीट करनी है, समथिंग गोइंग ऑन, एंड आप मील्स स्किप कर रहे हैं या आप मील्स का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, आप ऑन लॉट्स ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेस ईटिंग, तो इट ऑल लिंक्स टू योर हेल्थ. आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, अदर देन ऐसे डिस्ट्रक्ट होगा, वो स्लो हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, जिस वजह से आपकी बॉडी टेन क्या करेगी, वो ज्यादातर स्लो मेटाबॉलिज्म लीड्स टू द वेट गेन और हार्मोन इम्बैलेंस होगा. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हॉर्मोन्स अगर आपके बैलेंस नहीं रह पाएंगे, उस वजह से भी आपका वेट गेन होगा या आपका पुअर न्यूट्रिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन वो नहीं हो पाएगा. तो एवरीथिंग इज लिंक्ड विद दैट. माइंडलेस स्नैकिंग एंड जंक अवेलेबिलिटी, जैसे हमने बात की कि कुछ भी आप, क्योंकि आपको लग रहा है कि प्रॉपर खाना खोलने में 10 मिनट जाएंगे, 15 मिनट जाएंगे, वो टाइम नहीं है, तो कुछ भी चीज जो हाथ में आ रही है काम करते करते हम खा लें, तो वो हमेशा पार्ट या सही चीज नहीं पिक करी जाती. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एवरीबॉडी इज टेकिंग केयर ऑफ देयर टेस्ट पर. ठीक है, कि क्या आपकी दांत पे अच्छा लग रहा है, तो वो पे क्या हो जाता है कि वो हिडन कैलोरीज आपकी बॉडी में चली जाती है. और जंक की अवेलेबिलिटी बहुत इजी हमें लग जाती है कि आसपास वही बहुत है, तो ठीक है वही पिक करा, वो खा लिया. उस वजह से अगेन हिडन कैलोरीज, जितनी कैलोरीज आपको नहीं चाहिए, जो हम 20 से 25% एक्स्ट्रा कैलोरीज की बात कर रहे हैं जो स्नैक्स से आती है, दैट विल अगेन लीड टू द वेट गेन. तो इन सब से क्या है, ग्रेजुअल वेट गेन, फटीग मतलब एनर्जी नहीं. क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी हेल्दी नहीं खाया, हमने कुछ भी अपनी बॉडी को न्यूट्रिशियस नहीं दिया, हमने कुछ भी अपनी बॉडी को ऐसी चीज नहीं दी जो उसकी हेल्थ को बिल्डअप करने में हेल्प करे. एंड बिकॉज हम एम्प्टी स्टमक ज्यादा है या इरेगुलर मील्स ले रहे हैं, मील्स को स्किप कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, इट कैन लीड्स टू द हायर रिस्क ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी, और जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, हाइपरटेंशन, अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट स्ट्रेस. आप जंक खा रहे हैं, सोडियम ज्यादा है, सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, दैट विल लीड टू द हाइपरटेंशन. हमने सबसे पहले सेडेंटरी जॉब में बात की फैट एक्यूमुलेशन की, तो फैट ज्यादातर अगर आपका बॉडी में ही रह रहा है, तो वो लिवर के आसपास आपका फैट डिपॉजिट हो जाएगा, फैट डिपॉजिट हो जाएगा, दैट विल लीड टू द फैटी लिवर. अगेन इट विल डिस्टर्ब द मेटाबॉलिज्म. The body's response to poor office nutrition, तो वो किस किस तरीके से हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करेगी, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. लाइक वो डीप डाइव इनटू कि हाउ दैट पुअर न्यूट्रिशन अफेक्ट्स अस. इसमें मेन हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी डाइजेशन की, हमारी गट हेल्थ की, बिकॉज दैट्स द कोर, दैट्स द मेन थिंग. आई थिंक सिंस नाउ वी नो दैट गट हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू maintain the immunity, in order to maintain your weight, in order to maintain your overall well-being. The gut health, आपका digestion, आपका digestive system needs to be in the राइट फंक्शन. उसकी फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है. सो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स बेस्ट व्हेन वी ईट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड इंक्लूड द फाइबर. दैट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन आवर बॉडी एक्चुअली रिक्वायर्स द फूड, द रिक्वायर द एनर्जी एंड वी आर सप्लाइंग इन द फॉर्म ऑफ फूड, एंड उस फूड में, उस डाइट में, उस हेल्थ में हम उसमें फाइबर भी, इनफ फाइबर इंक्लूड करें जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है. Irregular eating patterns क्या कर रहे हैं? Again, it slows down your digestion, it makes the system less efficient. So आपने मोस्टली हम इसको और भी डिटेल समझेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊं क्या हम इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स की बात करें. मोस्टली पीपल आर टेंड टू स्किप देयर ब्रेकफास्ट. क्यों? क्योंकि सुबह फटाफट उठना है, तैयार होना है, एंड दे हैव टू रीच द ऑफिस और लॉग इन एंड व्हाटसोएवर. एंड उस बीच में सबसे इजीएस्ट थिंग फॉर एवरीवन in that time being is to skip the meal and skip the breakfast. Okay, and वो skip हो गया, and then you maybe indulge into your work and you don't listen to your body उस time पे. तो उस वजह से क्या हुआ, आपने बहुत देर बाद खाना खाया. Maybe उस time भी you had your meal which is not full of all the nutrition, which has not enough fiber, and
it can be either the overeating or again very less food because of the n number of reasons. अब उसके से आपकी डाइजेशन पे कैसे असर होगा, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका स्टमक, आपका गट जो है वो जब भी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, when it starts a digestion process, it releases certain amount of enzymes, certain amount of juices. अब बॉडी पे कभी खाना आ रहा है, कभी नहीं, ठीक क्वांटिटी में आया नहीं, जंक ज्यादा आ गया, कुछ हो गया, स्टमक इज नॉट एबल टू अडेप्ट विद दैट। तो उस वजह से आपका जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है जिसको हम कह रहे हैं, वो स्लो हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। और क्योंकि हमने फाइबर कम लिया, अनहेल्दी डाइट ली, जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी है, जो पॉपुलेशन है, अगेन इट विल ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, वो भी कम होगी। जो बैड बैक्टीरिया विल राइज अप, वो बढ़ेंगे, बैड बैक्टीरिया राइज अप हो रहे हैं। अगेन द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर गट की ब्लोटिंग है, इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। अब जो हमारे गुड बैक्टीरिया, अगर हम अच्छी डाइट दे रहे हैं, प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो वी विल नॉट फेस एनी ऑफ दैट। And again, I said कि gut health is the one of the major factor of for your immunity, for your good immunity. अब क्योंकि poor और bad bacteria are more, और आपके गट के इश्यूज के साथ साथ आपकी बॉडी को सफर करना पड़ रहा है with the lower and the poor immunity. So जो टेंडेंसी होती है टू फॉल सिक, वो इंक्रीज हो जाती है। Very important point, because gut is not working well. So whatever food you are eating, मान लीजिए आप पूरे दिन में, पूरे टाइम पे आप एक मील भी अगर बहुत हेल्दी अच्छे से ले भी रहे हैं, but throughout the day it is not going well, या आपने किसी एक या दो दिन अच्छे से खाना खाया और अच्छे से मील ली नहीं, तो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि गट की हेल्थ इज वेरी पुअर, गट इज नॉट एफिशिएंट, मतलब अपना अच्छे से काम नहीं कर रही, तो जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी उस अच्छे खाने से आपकी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। वाई? बिकॉज डाइजेशन इज पुअर, गट उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा, तो एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं हो रहा न्यूट्रिएंट्स का, और जो इफेक्टिवनेस है न्यूट्रिएंट्स की वो हमें नहीं मिल पा रही। सो and there is one more thing which we know, that your gut is जो आपके गट है सेकंड ब्रेन, तो आपका ब्रेन एंड गट का जो एक्सेस होता है, जो कनेक्शन होता है, इट मैटर्स अ लॉट। तो आपका जो भी गट हेल्थ है, इट इम्पैक्ट्स योर ब्रेन हेल्थ एज वेल। सो अगेन जो भी हमारा फोकस है, मूड है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये होने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मूड, आपके मूड ऑफ है, यूर इन बैड मूड बिकॉज ऑफ नॉट हेल्दी गट, क्योंकि बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम में रिफ्लेक्ट होगी, नहीं तो आप अपने आसपास, अपने कलीग्स या वर्क प्लेस पर उस चीज को वो रिफ्लेक्ट होगा ना, इट विल गिव नेगेटिव इम्पैक्ट। सो अगेन एवरीथिंग इज लिंक्ड with your how you take up your diet, कैसे आप न्यूट्रिशन चूज कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्लड शुगर, हमने गट की बात की कि गट पुअर होगा तो बट ऑल कैन हैपन, बट व्हेन वी से कि पुअर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पुअर न्यूट्रिशन में जंक फूड ज्यादा है, या एनीथिंग विच इज रिफाइंड, या सिंपल कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट रिच है, फैटी फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, पैकेज फूड है, उसमें क्या है, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा है, उसमें आपके जो मल्टीविटामिन, फाइबर और आपके प्रोटीन, गुड फैट्स, वो सब कम है, वो है ही नहीं, या तो नेग्लिजिबल है, या है ही नहीं है, या बहुत कम है। सो इट कैन लीड्स टू द योर ब्लड शुगर इम्बैलेंस। तो दिस कैन कॉज अ रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज। सो आपने पूरा दिन अगर खाना नहीं खाया ठीक से, या आपने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, एकदम से यू फील लाइक यू लोअर एनर्जी, और वो फील होगी बिकॉज दैट्स हाउ योर बॉडी इज ऑल्सो मशीन, इट हैज इट्स ओन मैकेनिज्म। ओके, तो वो पूरा टाइम इट कैन नॉट बी ऑन द नो फूड थिंग, ठीक है, तो इट नीड्स फूड, इट नीड्स गुड फूड। सो व्हेन योर बॉडी रिक्वायर्स दैट फूड, दैट एनर्जी, व्हाट विल यू डू, यू विल ग्रैब either something which is very high in sugar, or something because it has a glucose, और कुछ भी ऐसे बाकी, बिकॉज आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। अब आपने उस टाइम तो आपको इंस्टेंट एनर्जी कैसे, क्योंकि जैसे वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा, इट विल राइज अप योर ग्लूकोज लेवल, वो एकदम स्पाइक ऑफ एनर्जी आपको बॉडी को
मिलेगा and you feel like very energetic, no, I'm feeling better. But वो very for a short interval होगा. It is just for a very like a short burst of a spike and then एकदम से body again वापस और even lower than previous energy पर चली जाएगी. This dip again leads to the energy drop and renewed cravings. मतलब फिर से वो और ज्यादा dip होगी एनर्जी, फिर आपको cravings होंगी, फिर आपको लगेगा कुछ और चाहिए और वो craving हमेशा then again आपकी बॉडी क्या करेगी, कुछ मीठा चाहिए या कुछ फैटी चाहिए या कुछ ऐसा कि जिससे इंस्टेंट एनर्जी मिले या कुछ सॉल्ट, बहुत ज्यादा सॉल्ट वाली चीज चाहिए. So this cravings keep on happening. So it's a cycle. If we are not providing our body good nutrition or we are not taking care of our diet, we are stuck in that vicious cycle. During this process, the pancreas releases the insulin to help manage the excess glucose. And when this happens, the body can become less responsive to insulin, जिसको हम कहते हैं insulin resistant. So आपके स्पाइक अप हुआ ग्लूकोज, फिर एकदम से डिप हो गया, अगेन क्रेविंग्स, फिर हुआ. तो आपका जो पैनक्रियाज एक होता है आपके बॉडी में इज एन ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ इंसुलिन. और उनको इंसुलिन क्या करता है, आपके बॉडी में जो भी ग्लूकोज है, जो शुगर है, उसको मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, उसको मैनेज करता है, आपकी बॉडी में कितना ग्लूकोज जा रहा है उसको. अब क्योंकि ये इतना सारा वी आर इन द साइकिल डिप अप हो रहा है, तो उस वजह से इट्स ऑर्गन वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, या तो बहुत ज्यादा एक्सेस में इंसुलिन आ जाएगा या बहुत कम रिलीज होगा. वो एडुकेट जो एक्चुअली रिक्वायरमेंट है इंसुलिन की उतनी रिलीज नहीं हो पाएगी. एंड इफ इट कीप ऑन हैपनिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा, अगर हम यही हमारा रूटीन बन जाएगा लंबे समय के लिए, तो हमारी बॉडी का जो इंसुलिन को लेकर रिस्पॉन्स होगा वो लिमिट हो जाएगा. क्योंकि वो ये कि तो हमेशा कुछ ना कुछ इंसुलिन आ ही रहा है, मतलब जब आना चाहिए तब आए तो आप बॉडी को अटेंटिव है, बट ये हमेशा आ ही रहा है, इंसुलिन रिलीज कर ही रहा है पैनक्रियाज विद लाइक अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हर एक घंटे में, हर आधे घंटे में. तो बॉडी वो रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है, उसको अपने आप को उसके अगेंस्ट जो भी हमें इंसुलिन के रिस्पॉन्स देना चाहिए वो हम रिस्पॉन्स हमारी बॉडी इनिशिएट नहीं करें. सो दैट विल वी बिकम इन अ केस कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस. एंड ओवर द टाइम व्हेन इट बिकम्स हार्ड फॉर योर बॉडी टू मैनेज ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर, सो वो आपकी जो एक बॉडी की एनर्जी होती है, स्टेडी एनर्जी वी रिक्वायर, सो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर योर बॉडी. The very important point which we need to understand is the stress, how stress hormone get impacted by the poor nutrition. Specifically when we talk about the workplace poor nutrition intake, our body releases a hormone called cortisol, and this cortisol is released when we are under the stress. And by under the stress we mean because we are focusing on the workplace nutrition. So when you are working, again it's very human thing that you be in a stress situation. आप कोई चीज सोच रहे हैं, आप अंदर आप प्रेशर और कुछ भी है, काम कर रहे हैं, and it's very normal thing to happen with any human being to be in that situation. अब आपकी बॉडी अंडर अ स्ट्रेस ही वो कॉर्टिसोल रिलीज करेगी, ठीक है. अब ये कॉर्टिसोल रिलीज होना भी जरूरी है क्योंकि इट्स लाइक एन रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी कोई एक एक्सटर्नल या फील कर रही है, इट्स इमोशन, इट्स फीलिंग, एंड उसकी वजह से आपके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, क्या एक रिफ्लेक्स एक्शन है, वो क्या कर रही है, रिस्पॉन्स इन द फॉर्म बाय रिलीजिंग द कॉर्टिसोल हार्मोन. एंड इट गिव्स योर बॉडी अ अलर्टनेस कि नहीं भाई स्ट्रेस में है, अलर्ट हो जाओ, स्टार्ट वर्किंग, पुटिंग योर एफर्ट्स, काम करो एंड डील विद द चैलेंज. ओके, बट व्हेन वर्क प्रेशर कंबाइंस विद द imbalance eating habits. So हम कह रहे हैं कि अभी तक whatever we have discussed is everybody tends to eat something unhealthy under a stress condition or not even a stress condition in general because of a number of reasons. So क्या हो रहा है, आपकी unhealthy habits, eating habits and unhealthy choices when it mixed with the rise of the cortisol level, तो उस वजह से आपका जो भी जो टाइम है आपके बॉडी में स्टे करने का वो
बहुत ज्यादा लंबे समय तक हो जाता है। अब इस वजह से व्हाट विल हैपन, इट विल इंड्यूस द मोर क्रेविंग्स, इट विल इंड्यूस कि आप कुछ खाएं because you want to calm yourself, and food is one thing everybody tends to go when they are in stress or not feeling good. So this can influence the body, how the body stores fat, often around the abdominal area. And you have heard saying many people that I have gained weight around my stomach. Overall my body is fine, मेरा body ठीक है, but जो स्टमक एरिया, जो एब्डोमिनल टमी एरिया है, ये बाहर हो गया, पता नहीं ये कैसे हो गया. एंड दैट्स लाइक ना, दिस इज सम व्हेन कॉमन लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कि योर स्ट्रेस बेली, ठीक है. एंड दिस इज व्हाई वी कॉल अ स्ट्रेस बेली, बिकॉज वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ज्यादा लंबे समय तक रिलीज हो और आपने अनहेल्दी चीजें खाई हैं, वो कॉम्बिनेशन की वजह से वो एब्डोमिनल एरिया आपका में ज्यादा फैट स्टोर हुआ, एंड दैट्स व्हाई यू लुक फील लाइक वो बेली आपका बढ़ गया है. एलिवेटेड कॉर्टिसोल कैन ऑल्सो अफेक्ट द स्लीप क्वालिटी, बिकॉज बॉडी पे लंबे समय तक कॉर्टिसोल है. सो ब्रेन के पास क्या सिग्नल है या बॉडी के पास क्या सिग्नल है व्हेन कॉर्टिसोल इज इन बॉडी, आपकी बॉडी अंडर द स्ट्रेस है. और हमने सेकेंड पॉइंट में क्या समझा, कॉर्टिसोल जब रिलीज होता है तो बॉडी अलर्ट हो जाती है. नाउ इट्स लिंक्ड. क्यों? अब आपकी बॉडी अलर्ट स्टेज में है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी कॉर्टिसोल है, तो बॉडी क्या करेगी, सो तो पाएगी. तो इसलिए योर स्लीप क्वालिटी गेट डिस्टर्ब एंड आप ठीक से रेस्ट नहीं ले पाएंगे, एंड दैट विल इम्पैक्ट अगेन योर इम्यूनिटी, योर मूड्स, योर फोकस एंड एवरीथिंग. वन मोर पॉइंट कि when the sleep quality affects, so we tend to eat even more at night rather than in the daytime. Second thing, how health gets affected, it's not just हमने बात की कि इम्यूनिटी और फोकस एंड ऑल, आपका फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि योर बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट व्हिच इज नोन एज बीएमआर गेट रिड्यूस्ड सो आपका फिजिकल अपीयरेंस जो होगा वो भी चेंज होगा. एंड ये क्यों रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ सिडेंट्री लाइफस्टाइल. सिडेंट्री जॉब में आपका जो भी रूटीन है, because you're not moving much, you're not into the exercise, you're not working out, you're not burning the calories, so less calorie burn और more calorie आपकी जो है intake हो रही है, तो which is stored as a visceral fat. इसलिए visceral fat आपका on a higher side होगा. Poor hydration, this is a very common thing which we see, that people tend to eat more of take more caffeine, like tea, coffee ज़्यादा ले लेंगे पर पानी नहीं पिएंगे. I don't know why this, but पहला वो इंस्टेंट वो ये चीज आती है कि that you pick up the tea and coffee because आपको लगता है अलर्टनेस चाहिए, भाई फ्रेशनेस चाहिए कि आंखें खुल जाएं, काम करना है ना. तो ये बिल्कुल एक क्लिक होता है, हम क्या लेंगे सबसे पहले, टी या कॉफी. लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ टी एंड कॉफी इज ओके, बट वो एक्सेसिव में क्या हो रहा है कि आप पानी नहीं पी रहे हो, कीप ऑन हैविंग अ कैफीन, एंड कैफीन डिहाइड्रेट्स योर बॉडी. कैफीन आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ा देती है, इस वजह से भी आपके बॉडी का फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं. सो फाइबर डेफिशिएंसी या पुअर डिहाइड्रेशन की वजह से आपका, क्योंकि डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत से न्यूट्रिएंट्स हैं, हम जानते हैं हमारे वाइटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल है, तो उनको भी चाहिए होता है. उस वजह से क्या हो रहा है कि वाटर आपकी बॉडी में रुक रहा है, आपके जो बॉडी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो रही है, क्योंकि सोडियम का भी इंटेक ज्यादा है, जिस वजह से ब्लोटिंग हो जाती है, जिस वजह से स्वेलिंग हो जाती है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन जिसको हम इंक्रीज कहते हैं, और या कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि फाइबर नहीं हम ले. आपके ऑर्गन्स कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, अगेन हमने जब सबसे पहले समझा कि फैट एक्यूमुलेशन होगा. फैट एक्यूमुलेशन यूजुअली क्या होता है, आपकी जो भी आपका शुगर होता है, फॉर एग्जांपल आपका इंटेक हुआ, आपने कुछ भी बिस्किट्स या स्वीट्स या डेजर्ट लिया, जो एक्सेस शुगर है आपकी बॉडी, जितना आपकी बॉडी ने यूटिलाइज कर दिया अब जो एक्सेस में है वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट में कन्वर्ट कर देते हैं. अब वो फैट जो है, क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा है, तो एक्यूमुलेट होगा ऑर्गन्स के आसपास, यूजुअली आपके लीवर के आसपास एक्यूमुलेट हो जाता है, और that can lead to the fatty liver. Pancreas overwork insulin production, अभी हमने समझा क्योंकि वो बार बार इंसुलिन रिलीज कर रहा है, जिस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है. हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, क्योंकि हायर इनटेक ऑफ
बैड फैट्स और ट्रांस फैट, और इस वजह से क्या है कि और लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट, इस वजह से आपकी बॉडी में जो प्लैक या ट्राइग्लिसराइड्स राइज आपके हो जाएंगे, एलडीएल राइज हो जाते हैं, दैट कैन इम्पैक्ट योर हार्ट हेल्थ और योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड योर ब्लड प्रेशर. गट अगेन, imbalance microbe means imbalance in microbe, that is good and bad bacteria आपके imbalance हो जाएंगे, bad bacteria more than the good bacteria. तो craving ज्यादा है, low immunity है, indigestion problem है. Hormones भी learn, अभी हमने समझा कि cortisol बढ़ेगा stress के साथ, तो फैट जो है स्टमक में वो ज्यादा स्टोर होगा और आपकी क्रेविंग्स जो है शुगर या सॉल्ट को लेके वो भी बढ़ेंगी. दूसरा, इंसुलिन इज अगेन अ हार्मोन, तो इंसुलिन स्पाइक्स होगा, एकदम से एनर्जी आएगी फिर क्रैश हो जाएगी, that could lead to the risk of insulin resistance or the diabetes. Leptin and ghrelin, these are the two hormones जो इम्पैक्ट, जिनके ऊपर इम्पैक्ट होता है बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर इनटू. सो लेप्टिन इज अ सेटाइटी हार्मोन, ग्रेलिन इज अ हंगर हार्मोन. आई गिव यू अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट इट कि सेटाइटी हार्मोन जो लेप्टिन है, ये क्या है कि आपके बॉडी में फैट स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ फॉर द एनर्जी. अब वो स्टोर हो गया, आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिल जाता है, लेप्टिन रिलीज होगा एंड वो आपके ब्रेन को, आपका हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल देगा दैट कि अभी हमारा सेटाइटी आ गया है, वी डोंट नीड मच फूड, तो अभी हम खाना खाना बंद कर सकते हैं. दिस इज व्हाट लेप्टिन डज. ओके, एंड ग्रेलिन क्या होता है? इट्स अ हंगर हार्मोन. अब ये आपके स्टमक में रिलीज होता है, आपके स्टमक में ग्रेलिन हार्मोन रिलीज होगा और वो आपका हाइपोथैलेमस में, जो ब्रेन में फैट है, वहां पे सिग्नल जाएगा कि वी नीड फूड, वी नीड फूड, हमें एनर्जी दो, वो हंगर हार्मोन रिलीज हुआ है. सो दिस इज हाउ इन अ बैलेंस वे ये काम करते हैं. जो ग्रेलिन है वो खाना खाने से पहले बिफोर मील रिलीज होगा, लेप्टिन ड्यूरिंग और आफ्टर द मील रात का रिलीज होगा, जस्ट टू गिव दैट द सिग्नल कि आपकी बॉडी फुल है, अलर्ट दे देगी कि सेटाइटी होगी. बट नाउ इफ पुअर स्लीप, जंक फूड, नॉट मूविंग मच, ओवर ईटिंग, नॉट ईटिंग प्रॉपरली, न्यूट्रिशियस फूड को हम कम ले रहे हैं, फाइबर वगैरह नहीं ले रहे हैं, लेस food which less food in compared to the how much your body is required, तो वो सब चीजें अगर ये हो रही हैं तो देन ये भी hormones again imbalance होगा. तो ghrelin is keep on releasing, it's keep on releasing, क्योंकि जब आप पुअर स्लीप होते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग योर बॉडी इज लो इन एनर्जी, तो आपकी बॉडी क्या है, क्योंकि रात भर जागे, ब्रेन को जागना है या अंडर स्ट्रेस या कॉर्टिसोल के टाइम पे कुछ आपके कॉर्टिसोल कंटिन्यूस आपके बॉडी में है, तो ग्रेलिन भी आपकी बॉडी में स्टे करेगा लंबे समय तक. जब तक ग्रेलिन रहेगा आपकी बॉडी को सिग्नल रहेगा फूड चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए, तो वो सुनेगी ही नहीं, स्टॉप्स हियरिंग टू द लेप्टिन कि हाँ सेटाइटी आ गई. सो दैट्स हाउ इट कैन लीड टू द वेट. तो वी विल नाउ लर्न अबाउट कि हम स्मार्ट स्नैक स्वैप्स या स्मार्ट फूड स्वैप कैसे कर सकते हैं. फ्राइड या कुछ भी चिप्स या फ्राइज की जगह हम नट्स ले सकते हैं, हम आलमंड्स ले सकते हैं, हम कैशू ले सकते हैं, पिस्ताशियोस ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं. अब वॉलनट्स हो गए, आपके आलमंड्स हो गए, दे आर वेरी गुड रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ, फाइबर होता है उनमें. एंड सीड्स भी आप ले सकते हैं, गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3, good fats and protein also, तो keeps you full for a longer time and आपकी बॉडी को essential nutrition भी provide करते हैं. उसके साथ साथ बेवरेज में अगर हम बात करें, यूजुअली क्या है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पे ना जाके या तो हम ग्रीन टी या हर्बल टी जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, ऐसी चीजें ले सकते हैं. ठीक है, कि एम्प्टी कैलोरीज जा रही हैं आपकी सॉफ्ट ड्रिंक से, which is only sugar. Again, जो भी अभी तक हमने समझा, इंसुलिन रेजिस्टेंस या लेप्टिन ग्रेलिन का इम्बैलेंस, कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस, it can happen if we keep on having these kind of soft drinks or the carbonated drinks. On the contrary, if we switch or take a healthy option just like green tea, तो powerful antioxidants हैं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, metabolism अच्छा होगा, and the brain functionality is also be in a right way. Some more food swaps we talk about, that is again nuts versus fried foods. Nuts में आपका वही प्रोटीन, ओमेगा 3,
मैग्नीशियम, एंड मैग्नीशियम इज वेरी गुड फॉर योर ब्रेन एंड मसल्स के लिए, क्योंकि हम बहुत देर तक बैठे हैं या मूवमेंट नहीं हो रहा तो मसल हेल्थ भी ऑल्सो गेट अफेक्टेड. सो मैग्नीशियम इज वेरी गुड फॉर योर मसल रिकवरी एंड मसल हेल्थ. Fruits and veggie over any junk food. So try to include fruits as like a mid morning snack. और आप कुछ भी वेजेस ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलेड या इन द एज एन, अगर आप कुछ भी बीच में मंच करने का मन है कि अ कैरेट और कुकुम्बर इस तरीके से. तो फाइबर है क्योंकि गट के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स आपको मिल जाते हैं. साथ ही साथ कंट्रोल्ड कैलोरीज है, आप अपनी कैलोरीज से भी एक्सीड नहीं करते. And the last one, which we have just discussed, is green tea versus carbonated drink. ऑफिस डाइट गैप्स की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि ब्रेकफास्ट मिस हो गया तो या लंच कुछ भी हो गया, काम में है या नहीं देख रहे कुछ भी, तो क्या अगर बीच में भूख लगी तो चाय ले ली, बिस्किट ले लिया. दिस इज द वेरी क्विक ऑप्शन, ठीक है. एंड एक्सेस कैफीन या कोला या जो भी हम कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं वो ले लेते हैं बिकॉज वी जस्ट नीड बूस्ट ऑफ एनर्जी. लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजेस बिकॉज अगेन वो थॉट में नहीं आ रहे, वो ऑप्शन में नहीं आ रहे, and we tend to eat something which is again very because of imbalance of hormones which can lead to the more salty or a sugar cravings. So we tend to take something which is processed and junk, and over dependency on the packaged and fried foods because of availability. Although availability of the healthy food is much easier in my opinion, and अगर हम अपने पास वो चीजें रखें वो बहुत easy है rather than you have to go and pick up the packaged food. तो result क्या है कि nutrient deficiencies हो रही है because you're not getting anything out of it except the empty calories or only some glucose or the sugar and the carbohydrates, simple carbohydrates, which can lead to the weight gain and fatigue, low energy and long-term health problems. मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या मिसिंग है हमारे डाइट में या ऑफिस में क्या मिस हो जाते हैं, विच इज लाइक योर फाइबर, प्रोटीन एंड द मल्टीविटामिन. हम कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन शुड टेक 25 to 35 grams of fiber, but when we see office workers or so they are even taking less than 10-15 grams. So again, why the gut issue? So it comes from here because fiber ही पूरा नहीं जा रहा. And again, we know the other issues which come along with it. Protein, again, protein is the hero nutrient everyone should take, even if a sedentary worker, very physical active or zero movement or very less movement, everyone needs a protein in their diet. Every cell of your body is made up of protein. Every tissue of your body is made up of your protein. So does your organs and the organ system, and your body responses and hormones are made up of proteins. So adequate amount of protein is required. So even if you're not doing anything, your body requires 1 gram per kg body weight. And but again, the वो जो consumption requirement से भी कम है. So people are not taking that much protein, which will leads to the muscle loss, which will leads to the slower metabolism. And protein is not just for muscle building, which is an assumption. It is just even if you want to sit and work. Even if I'm sitting here and delivering a session, my body needs that energy, that attentiveness, the focus, okay, that I'm interacting with you. For that, I need the protein. I need the fiber so that my body is having the satiety. Somewhere I'm not in the middle, I'm craving or something and all. And again, the third, which is very important, is our micronutrients, which includes both the vitamin and minerals. I need that. Your vitamin A for the eyes, vitamin C for your the vitamin D and C, the magnesium for your bone health, magnesium for your brain health, also selenium for your brain health also. Vitamin B family is for your nerve health and for your brain health, energy production as well. Okay, so your body needs all these vitamins and minerals to function properly. Even if just functioning
ऑफ इन अ बेसिक मैनर, जो उनका बेसिक काम है हर एक ऑर्गन का, उसको करने के लिए भी हमें बेसिक 3 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है. So when we say requirement, but again वो चीज आ जाती है कि we are in this lifestyle कि I don't what to take, कितना लेना है, क्या लेना है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है, to choose what is good, what is not good for me. And एक reliable good option हमें सबको चाहिए, जहाँ मुझे पता है when I am going for the taking this फॉर द फाइबर, मेरी बॉडी को वो एक्चुअल फाइबर मिल रहा है, वो एक्चुअल फाइबर की जो बेनिफिट्स है माय बॉडी इज गेटिंग. सिमिलरली फॉर प्रोटीन एंड योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. सो देन वी टॉक अबाउट आवर न्यूट्रीलाइट products, and which for that it is like, we know that we have the very amazing source for the protein, which is Nutrilite All Plant Protein. And Nutrilite All Plant Protein, it has all the essential 9 amino acids. Along with that, every serve is of 10 grams. One scoop is equals to 10 grams, which gives you 8 grams of protein. And it is a blend of 3 proteins, which is soy, yellow pea, and the wheat, which is combining together to give you all the benefits of 9 essential amino acids. So I know when and again, when it comes to protein, I also need to think about how my digestibility will be. So this protein is 100% vegan and with a PDCA score of 1. So easy with on your gut, easy on the digestion. On the other hand, higher absorption rate. So I'm good to go when I start my day, or in the middle of the day I'm craving on it, having something. So I can take this protein, and we all know we can take all plant protein in the multiple ways by adding in the smoothie, shakes, oats, and in multiple other ways, as in the batters. So we are sorted with the protein. Then when it comes to fiber, again our body can get the right amount of fiber from Nutrilite Fiber, and one scoop is of 4.5 gram, which gives you 3.7 grams of dietary soluble fiber. So your body is getting the right fiber in the form की डाइजेशन ठीक रहे, आपकी बॉडी में जो मूवमेंट है, आपका बाउल मूवमेंट है, दैट विल बी ऑन द राइट ट्रैक. आपकी बॉडी में जो कट में आपके हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, गुड बैक्टीरिया की, उनकी क्वांटिटी, उनका पॉपुलेशन अच्छे से इंक्रीज होगा, बिकॉज वी आर गेटिंग द राइट सॉल्युबल डाइटरी फाइबर. द की इंग्रेडिएंट्स is the resistant maltodextrin, your guar gum, and the inulin. So it is very easy to dissolve in any water. Take a 1 scoop, add in a glass of water, and you are good to go, and you get the right fiber. The problem for fiber is sorted. When now it comes to the multivitamin for your micronutrients, we have Nutrilite Daily Plus. So 1 tablet, it is consisting of 24 vitamin and minerals. Out of 24, 21 are at the 100% RDA. So your body is getting the 21 vitamin minerals are at the 100% RDA, along with other 3 vitamin minerals, which completes the 24 profile of vitamin minerals. We also have 4 Nutricer botanicals, which is Gotukola, Acerola cherry, purple carrot, and elderberry. So acerola cherry, purple carrot, elderberry, they are all amazing sources of antioxidants. So the oxidative stress है with the poor life cycle or lifestyle, तो वो भी it can decreases, वो भी कम होगा, वो भी better होगा. And again, there's a hero ingredient which we call the Gotukola. Gotukola is for your stress management. Then again, we were talking about throughout the session कि हमारा stress management अच्छे से हो, stress को मैनेज करना है, क्योंकि हार्मोन्स अफेक्ट होते हैं. एंड उसके लिए व्हेन इट कम्स वी हैव अ सॉल्यूशन कि Gotukola हमें मिल रहा है हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए, साथ ही साथ हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए. सो all the essential nutrients are getting covered here. Just for a quick for all of you to understand कि आपका डेली एक्शन का क्या कैसे आप कर सकते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको चीज कहूंगी कि अ डे बिफोर योर ऑफिस, आप रात में या एक दिन पहले पॉसिबल प्लीज ट्राई टू
prepare your meals, or at least discuss or make an a habit कि मुझे सुबह क्या खाना है. I should be clear with that. Be it your oats, be it your chila, be it your smoothie, anything, but I need to be clear कि morning what I need to have, and if I need a preparation for that, मैं एक रात पहले कर लूँ, so that मेरा जो मॉर्निंग का वो chaos है, getting ready, doing multiple things, हाउसहोल्ड की चीजें हैं, स्पेसिफिकली मेरे कम्स टू फीमेल, तो उस बीच में मैं अपना न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज ना करूँ. मील प्रिपरेशन एक रात पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, इफ यू टेक योर लंच अलॉन्ग विद यू टू द ऑफिस, या आप अपने ऑफिस में मोस्टली पीपल आर गेटिंग देयर लंचेस, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि व्हाट आई पुट इन माय प्लेट. ठीक है, मेक श्योर यू put a good amount of fiber, you put the salad, you put the veggies, you put the dal or any source of protein available. If there is buttermilk or curd, अगर आप कैरी कर रहे हैं, आप लेके जा रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, ऑफिस से ले रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें आपको बहुत ध्यान से अपने पेट में रखनी है, या आप अपने लंच में वैसे पैक करें. और बहुत जरूरी नहीं है कि ऑलवेज नीड्स टू बी एनी फैंसी मील. बेसिक खाना, बेसिक होममेड, होम स्टाइल मील इज गुड टू गो. होल ग्रेन की अगर आप चपाती खाते हैं या होल ग्रेन इनकॉर्पोरेट करते हैं डाइट में, अगेन गुड सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, अगेन फाइबर, आपको प्रोटीन भी मिलता है रागी, बाजरा, इन सब चीजों से. मिड मॉर्निंग में बेस्ट चीजें हैं आपका कुछ जो पिक कर सके इजिली, जिसके लिए ज्यादा सोचना ना पड़े, तो फ्रेश सीजनल फ्रूट, आपके नट्स हो गए, आपके सीड्स हो गए, रोस्टेड चना हो गया, मखाना हो गया. इवन यू कैन हैव रोस्टेड चना, मखाना, सीड्स, नट्स इन द इवनिंग टाइम एज वेल व्हेन यू आर कमिंग बैक और कम्यूटिंग बैक टू फ्रॉम ऑफिस टू होम, या इफ यू आर वर्किंग, तो इस बीच में आप ये सब चीजें भी ले सकते हैं. बहुत ही प्रैक्टिकल ऑफिस स्नैक एंड वेट मैनेजमेंट के लिए हम चीजें अगर कुछ सोचे तो क्या हो सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि अगेन आपका स्नैक नीड्स टू बी हेल्दी. Snack really needs to be healthy because मेजर जो मील है ना, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो स्किप हो जाते हैं या कर देते हैं, या जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, पर स्नैकिंग हमेशा रहती है. एंड वो स्नैकिंग हमेशा हेल्दी ना हो, तो हमारे पास हमेशा अपने कुछ ना कुछ हेल्दी ऑप्शंस होने चाहिए. प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ कीपिंग योरसेल्फ हाइड्रेटेड. अच्छे से पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेशन अच्छे से दीजिए. Limited amount, 1 or 2 cups of tea and coffee is okay to consume, but other than that आप green tea या herbal tea if it's available, आप please उसको ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए. मेल प्रिपरेशन जो हमने अभी बात की कि बहुत अच्छे से होना और समझना कि what my body needs, why my body need this. ये अगर मेरे को रहेगा याद कि समझ लूंगी कि हाँ ये चीजें चाहिए, which is like अभी आपने समझा, फाइबर, प्रोटीन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सो आई एम सेट, आई एम गुड टू गो. एंड इन अ बेटर वे आप ज्यादा ध्यान अच्छे से अपने काम में वो टाइम दे पाएंगे. माइंडफुल ईटिंग अगेन. एंड अभी तक हम थोड़ा थोड़ा बात कर रहे थे, बट कि मूवमेंट बहुत जरूरी है. लाइक 5 मिनट वॉक कर लिया, या अगर आपको बहुत देर तक सिटिंग का जॉब है या आप बैठते हैं, तो पीछे थोड़ा देर खड़े होकर इफ यू कैन अटेंड अ मीटिंग और यू कैन टॉक एंड यू कैन, अगर आप इस तरह से बहुत देर तक लैपटॉप में स्क्रीन पर है, यू कैन मूव योर आईज, यू कैन मूव योर नेक, डू अ बेसिक मूवमेंट. पोस्ट लंच या कभी भी टाइम है, यू कैन जस्ट गिव योरसेल्फ अ 1 or 2 मिनट ब्रेक, और 5 मिनट्स एक्सटेंड हो सकता है, तो प्लीज आप उसको अपना मूवमेंट जरूर इंक्लूड कीजिए. तो इस तरीके की स्ट्रेचेस, ब्रेक, बीच में अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए हटा देना स्क्रीन से, अपने आईज को वो रह देना, ये सब चीजें इम्पैक्ट करता है आपके ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी के लिए. सो आज के सेशन में हमने ये समझाना, पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आज जो हमने सेशन लिया है, डू यू थिंक योर करंट ऑफिस रूटीन सपोर्ट्स योर हेल्थ? आप प्लीज मुझे बताइए कि आपकी जो रूटीन अभी आप फॉलो कर रहे हो, अभी ऑफिस जाते वक्त, क्या आपकी हेल्थ को सपोर्ट कर रही है या नहीं. ठीक है, और अगर नहीं है तो जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आर यू रेडी टू include those changes in your life or not? और ऐसा नहीं है एक दिन में, in a one single day आप
ओवरनाइट सब चेंज कर देंगे। एक स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप जरूर लीजिए। एवरी डे मेक एन हैबिट ऑफ मेकिंग अ वन हैप्पी गुड चेंज, पॉजिटिव चेंज इन योर रूटीन एंड इन योरसेल्फ, सो यू कैन कीप योरसेल्फ कंसिस्टेंट विद दैट चेंज एंड वो लंबे समय तक रहेगा। एंड ऐसा नहीं है कि वेट लॉस या वेट मेंटेन करना बहुत ऐसा मुश्किल चीज है। Everybody can do it and it's not to be like somebody can achieve it in a month or somebody can achieve it in 3 months. It's okay, everybody is different, everybody's routine is different and it's not about the perfection, it's about making better choices. It's more of बार बार रोज अच्छी चीजें कैसे चुन रहे हैं अपने लिए और अपनी हेल्थ के लिए, जिससे आप और आपके आसपास आपकी हर चीज बेटर हो, so your future self will thank you for the healthy habits you built today. So thank you so much. This is what my presentation was for you today, and if we have any question to take about this. Okay, we have couple of questions, तो वो हम ले लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि लेप्टिन रिलीज कहाँ होता है। तो जब आपकी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि ग्रेलिन आपकी बॉडी में स्टमक में रिलीज होता है, वैसे लेप्टिन आपकी बॉडी को एक सिग्नल तरीके से रिलीज होता है कि जब आपकी बॉडी में इनफ स्टोर हो जाता है फैट इन द फॉर द एनर्जी, तब आपकी बॉडी उसको रिलीज करती है। एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, हम एडिपोज टिश्यूज कहते हैं फैट्स को, वहां पे वो रिलीज होता है टू गिव एन सिग्नल दैट योर बॉडी इज फुल, सैटिस्फाइड हो गई है और अब आपको और खाने की जरूरत नहीं है। किस टाइप की एक्सरसाइज होनी चाहिए सर? हर उस टाइप की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जो आपके बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि अगर ऑफिस स्टार्ट होने से, अपने वर्क लाइफ स्टार्ट होने से पहले, इफ यू गेट टाइम इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग एनी टाइम, तो आप किसी भी 45-60 मिनट्स एक योगा, आप जिम या किस टाइप की एक्सरसाइज आप ले सकते हैं। बट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, जैसे वी हैव डिस्कस्ड कि इस तरीके से हमें अपने आप को मूवमेंट करना चाहिए कि अगर आप बहुत देर तक बैठे हैं तो थोड़ी देर खड़े हो जाइए। मीटिंग्स में आप खड़े होकर अटेंड कर सकते हैं, यू कैन स्टैंड अप एंड अटेंड द मीटिंग्स। एंड नहीं तो आप 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेके स्क्रीन के सामने थोड़ी देर अपना हटा के अपनी नेक मूवमेंट दे सकते हैं, शोल्डर्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वॉक इनसाइड योर ऑफिस। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि लिफ्ट अगर पॉसिबल है कि आप स्टेयर्स यूज कर सके तो उस टाइम स्टेयर यूज कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन इनकॉर्पोरेट बेसिक छोटा मूवमेंट ड्यूरिंग योर टाइम। सर अगर आपका प्रोटीन लेवल इंक्रीज लेने पे आपका यूरिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज आप फर्स्ट, अगर ये रिकरिंग थिंग, प्लीज कंसल्ट अ फिजिशियन एंड डॉक्टर फॉर द exact treatment if it's required. दूसरा, please incorporate a good amount of hydration in your body. आपकी जो यूरिक एसिड होता है, it's like a बाय प्रोडक्ट। आपकी किडनी जब डाइजेस्ट कर लेती है सारा प्रोटीन, तो वो आपका एक बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आप उसको स्ट्रैटेजी, जितना जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जैसे कि न्यूट्रलाइट प्रोटीन हो गया, एपीपी और प्रोटीन और अदर प्लांट सोर्सेज, दे आर बेटर, तो आप वो जरूर इंक्लूड कीजिए। साथ साथ हाइड्रेट वाटर इनटेक अच्छे से लीजिए, फाइबर को भी साथ में इंक्लूड कीजिए। बाकी प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर इफ यू हैव एनी फर्दर इशू एंड वो रिकरिंग है तो फॉर द प्रॉपर ट्रीटमेंट। यहाँ पे जैसे बोला कि सॉफ्ट ड्रिंक एडिक्टेड होते हैं तो उनको मॉर्निंग में एनर्जी चाहिए। सो इट्स नॉट कि आपके सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जो आपको एनर्जी दे सकते हैं मॉर्निंग में। ये इट्स ऑल लाइक साइकोलॉजी। आप प्लीज उनको बोलिए कि ये आप बेटर ऑप्शन है अपने बॉडी को तो बूस्टअप करने के लिए। स्टार्ट विद योर बॉडी with some kind of good functional water, या lemon water, fennel water, सौंफ का पानी, इस तरीके से जिस मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा उसमें अच्छे से उनको ओमेगा जरूर इंक्लूड करवाइए। प्रोटीन बोले खाने को, एनर्जी बॉडी में ऑटोमेटिकली राइज अप होगी। तो कोक की जरूरत या किसी भी तरह के सॉफ्ट ड्रिंक की जरूरत नहीं है उनको अपनी एनर्जी को
मेंटेन करने के लिए। बेबी फैट्स कैसे रिड्यूसर्स है, जैसे अभी हमने समझा कि स्ट्रेस ईटिंग या एक्सेस क्रेविंग्स या सॉल्ट या शुगर के इंटेक से एब्डोमिनल फैट बढ़ता है, स्टोर होता है फैट अराउंड द एब्डोमेन। सो विद द राइट डाइट, with the balance of fiber, protein, the nutrients, along with your exercise, and आप उसको मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सी कि आप बॉडी में एब्डोमिनल फैट है उसमें रिडक्शन आएगी। बट अगेन इट्स अ कंसिस्टेंट, इट्स नीड्स टू बी कंसिस्टेंट।